Hi student, again we are here with our same topic. We have discussed our topic statics. In static till now, we have discussed about our how we can calculate our mean. In this part of video, we are going to be understand our next topic. It's considered about a median of a group distribution. We are going to discuss today median of group distribution. Look, beta. Already we have talked about that. We are going to find out the measures of center tendency in these sections. हमने मीडियन को क्या हुआ, मीडियन भी हमारी एक तरह से एवरेज है. इट्स अ एवरेज. कैसी एवरेज है? इट्स आवर पोजिशनल एवरेज. ठीक है. तो देन आपने लास्ट क्लासेस में जब मीडियन पढ़ा वहाँ पे हमने क्या किया कि जो अनग्रुप डेटा था वहाँ पे हमारे आपने क्या करता था, वहाँ पे जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे. देन उसके बाद we are going to check that it's a even, जो n number of terms है वो even है या odd है. उसके अकॉर्डिंग it's n, our n is even, then we are going to take out to find out our median is what, n by 2th item. Our n by 2th item is our median there. If it's odd, then we are going to find out what, which item? Yeah, n plus 1 by 2th item. Then but in a terms of group distribution, first of all we have to be kept in our mind that कि जो मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल फॉर्म होगी वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि जो हमारा इंटरवल्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म करेंगे. ठीक. देन द एडिशनल, द मोर एडिशनल थिंग्स हियर इज दैट कि वी हैव ए क्लास फ्रीक्वेंसी, वी हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग, वी हैव ए क्लास इंटरवल, वी हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इट्स, बट देन वी आर गोइंग टू बी यूज वन टर्म्स हियर. इट्स कॉल्ड cumulative frequency. It's a cumulative frequency. Then first of all we have to know that what is our cumulative frequency. Actually our cumulative frequency is a frequency, we can say that it's a what, our cumulative frequency is a frequency of varied class, is the sum of, what is it, is the sum of all frequency, it is sum of all frequencies up to the variate, including the frequency of what, which class? Yes, including the frequency of that class. ठीक है. मीन्स जो हमारी बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, रोज हमारी फ्रीक्वेंसीज की सम होगी वेरिएट अप किस कहाँ तक, अप टू द वेरिएट, जो अप टू द वेरिएट, अप टू द वेरिएट, जो वेरिएट क्लास है जिस क्लास में आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज को भी हम इंक्लूड करते हैं. तो हमारी क्या फॉर्म होती है, देन वी गेट आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं. देन आल्सो वी हैव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज व्हाट, वी हैव अ लेस देन टाइप एंड सेकंड इज व्हाट, इट्स अ मोर देन टाइप. हमारे पास जो बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो उसके भी दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज लेस देन टाइप. लेस देन टाइप क्या होती है, जो हमारी लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, इट्स our less than type cumulative frequency is that frequency, the frequencies of all preceding class क्या होती है, it is the frequencies of all frequency class are added to the frequency of that class. जिस preceding classes की आप less than type है, preceding classes की frequencies को add up करते हैं उस class तक. And then what is your more than type? It's a more than type cumulative frequencies क्या होती है हमारी, the frequencies of all. वो preceding class की है, ये क्या होती है, succeeding class. It is what, it is the frequencies of all succeeding class are added to the frequency of that class. Frequency of that class, उस class के frequencies में succeeding class की frequency add करते हैं and it forms a more than type cumulative frequencies. Preceding classes के add up करते हुए आते हैं उस class तक, then it's called a what, less than type cumulative frequencies. तो for example अगर बात करते हैं, we are going to more be clarify that. Now suppose we have we have some class interval x1 to x2, x2 to x3, x3 to x4, x4 to x5 and x5 to x6. ठीक है बेटा. So suppose we have some class intervals like that, x1, x2, x3, x4, x5, x5 and in lastly what do we have, some last में क्या लेते हैं कि we have some interval like xn to xn plus 1. ओके. देन जस्ट टेक अब लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इट्स x1 x2 f1, देन वी हैव f2 f3 f4 f5 and
इस क्लास इंटरवल की हमने एफ एन ले ली, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि हाउ कैन वी फॉर्म्स जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का मींस हम बात करते हैं पहले लेस देन टाइप की, तो लेस देन टाइप एंड देन बात करेंगे इसकी मोर देन टाइप की, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। इन लेस देन टाइप व्हाट वी हैव, दिस इज आवर f1, ठीक है, वेरिएट की, देन वी हैव इट्स f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 प्लस f3, ठीक है ना। जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन टाइप, किस पे, लेस देन टाइप में जो हमारी CF होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल f1 देन f1 प्लस f2 देन f1 प्लस f2 प्लस f3, इन दिस इंटरवल वी हैव f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अप टू द वेरिएट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, देन लास्टली वी हैव f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 डॉट 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 प्लस f of n। दिस इज आवर लेस देन टाइप। इन मोर देन टाइप व्हाट वी हैव, इन मोर देन टाइप एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, मोर देन टाइप में हमारे जैसे रिवर्स प्रोसेस मींस यहां हमारे पास क्या होगी, वी हैव f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn, एंड यहां पे f1 नहीं होगा, देन वी हैव ओनली f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट fn, हियर वी हैव f3 प्लस f4 प्लस डॉट 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 fn, then here we have f4 plus f5 plus f6 plus dot dot fn, ठीक है बेटा। and lastly what we have, डिक्रीज करते हैं, finally we have here fn, ठीक। तो बेटा हमने किसकी बात की, हम बात करते हैं मीडियंस की, then it's our less than type and here we have our more than type, ओके। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात थी, ध्यान से आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक। चलिए, then it's a class, then corresponding frequency, then we have to discuss less than and more than type। अभी काम की बात करते हैं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स, सॉल्विंग स्टेप्स क्या होंगे हमारे टाइप्स में। लुक, हम अनलूप डाटा में n/2 n+1/2 आइटम को फाइंड आउट करते हैं, यहां पे क्या करेंगे, we have a class interval, we have a corresponding frequency there, then we are going to first of all what, to get our cumulative frequencies using less than type और more than type, आप less than type के साथ प्रेफर करते हैं वहां पे। फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि we are going to find out n/2 we are going to find out the value of n/2, वो n/2 वाली वैल्यू बेटा हमें हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, टू गेट द आवर मीडियन क्लास। हमारा जो फर्स्ट वर्कआउट होगा मीडियन प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल आवर मीडियन क्लास, बिकॉज हमें मीडियन क्लास मिलेगी, देन आफ्टर दैट जैसे हमें मीडियन क्लास मिलेगी टू कैलकुलेट मीडियन आवर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज दैट, इट्स व्हाट, हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर मीडियन, इन आवर मीडियन वी कैन कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला यूजिंग L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू हाइट। अब L कैलकुलेट करता है, L इज व्हाट, this is our lower limit of median class, this is our lower limit of median class, ठीक है बेटा। L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ क्लास है हमारी मीडियन क्लास का। व्हाट इज आवर C रिप्रेजेंट हियर, what it is called our cumulative frequency, this is our cumulative frequency of, look, we have to be take in here, you have to keep in mind that this is the cumulative frequency of class, this is cumulative frequency of class preceding the median class, ठीक है। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मीडियन क्लास की नहीं लेते हैं, किस क्लास की लेते हैं, प्रिसाइडिंग क्लास की लेंगे। यू हैव टू बी kept in mind that we have our CF, now we have CF, then our F represent frequency of median class, F हमारी frequency of median class देगी, H it gives width of the class. How can we get width of the class? Yeah,
You can get it by taking the difference of upper limit to the lower limit. ठीक, and then we have used n. We have a use n there. What is our n? N denote the total of frequency. What is our n? N is total of all frequencies. ठीक है. Then this is our formula. To calculate median, we use the formula. Median is given by L plus n by 2 minus Cf upon f into multiply with our weight of the class. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कैलकुलेशन करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू वर्क आउट टू गेट आवर मीडियन क्लास. मीडियन क्लास कैसे मिलेगी? आप इस क्लास एंड नंबर्स में टू गेट आवर मीडियन क्लास वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by 2 निकालेंगे और n by 2 को चेक करेंगे. वी हैव टू चेक, इसको हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी n by 2 वैल्यू है वो कहाँ लाई. हम चेक करेंगे n by 2 हमारा कहाँ लाई करेगी, किस CF, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज में वो लाई करेगी. जहाँ वो लाई करेगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपना मीडियन क्लास मिल जाएगा. उस मीडियन क्लास से जो उसकी लोअर लिमिट है वो L होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा F होगा. उसके जस्ट ऊपर मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर हमारा प्रेसिडेंट क्लास की जो CF है वो हमारे CF की वैल्यू होगी. विथ ऑफ द क्लास हम डिफरेंस ले लेंगे अपर और लोअर का, वो मिल जाएगा. देन हाइट, वो हमारा विथ हाइट हो जाएगा. देन n by 2. अब यहाँ पे वन ऑफ द क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो सवाल आता है कि हम n plus 1 by 12 को यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं n by 2. तो उसके भी जो बेसिक फैक्ट है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वहाँ पे, जब एक कर्व बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज कर्व बनाते हैं, जो फॉर्म करते हैं वहाँ पे यूज करते हुए, तो इस पिक पे जो कर्व बनती है, इट्स बेल शेप कर्व. उस कर्व के पिक पॉइंट्स पे हमारे साथ वो मेन पिक पॉइंट के अराउंड हमारे मेन मोड मीडियंस होते हैं. वो सारे पिक पॉइंट पे मिलते हैं मेन मोड मीडियंस, क्लस्टर्स फॉर्म करती है. तो एक्चुअली वो पॉइंट जो हमारा n by 2 आइटम्स है वो उसे इस कर्व को इक्वली डिवाइड कर देता है दो इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. अब दो इक्वल पार्ट्स में ऑब्वियसली ये इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, दैट्स इट्स कॉल्ड आवर मीडियन. ठीक. दैट्स व्हाई हम यहाँ पे n by 2th वैल्यूज को ही कंसीडर करते हैं. ठीक है. ये अपने माइंड में रखिएगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट. तो चलिए वो अब जो भी एक्सप्लेनेशंस है वो बेसिस के बाद हम यूज करते हैं कहाँ पे, प्रॉब्लम्स के साथ क्लियर करते हैं. तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो स्टार्ट करते हैं हम. द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली वेजेस ड्रॉन बाय 188 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री. वीकली वेजेस इन रुपीज. वी हैव अ okay weekly wages in rupees. We have 0 to 100 and we are going to up to 500. It's a 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500. Okay beta. Then number of workers we have, it's given 40, 39, 34, 40, 39, 34, 30, 45. ओके. और लुक, ठीक है. अभी हमारे पास क्या है, वी हैव अ वीकली वेजेस. हमारे पास ठीक है बेटा, हमारे पास वीकली वेजेस है 0 to 100. नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक. आते हैं स्टेप पे, क्या काम पहले करना था. ठीक है. वहाँ पे 188 वर्कर्स दिया है. ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम 188 वर्कर्स दिया है, मींस हमारा जो समेशन ऑफ एफ है, जो सिग्मा एफ है, वो 188 ही आना है. चेक कर लीजिए आप. 9 4 13 plus 5 18 carry 1 5 plus 3 8 3 11 3 44. It's a 188. Then we are going to first of all क्या हमें क्या करना पड़ेगा. या we have to be find out CF kinetic frequencies. कैसे करेंगे. राइट एंगल इज 40 लेस देन टाइप यूज करें. फर्स्ट राइट एंगल 40. देन we are going to add this 40 plus 39. What we get 79. अब 79 में 34 को ऐड कर दें. We get 130. 130 में 30 ऐड कर दीजिए. We get 143.
and then 45, 5384, 188. लुक, जो हमारे लास्ट वैल्यू है सी एफ की और जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो दोनों सेम होना चाहिए बेटा, ठीक। अगर नहीं है तो मीन्स आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं कर रखा है या रॉन्गली रिकॉर्डेड। अब लुक, वी हैव 40, दिस इज आवर 39, 113, 143, 188, ठीक है। अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर्म कर लिया। अब हमारा जो वर्क है वो क्या है, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का। देन हाउ कैन वी गेट आउट मीडियन क्लास, दिस इज सिग्मा एफ, ये हमारा n है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n by 2, 188 divided by 2, what we get 94. Now where our 94, this 94 lies there, यहाँ हो सकता नहीं, यहाँ हो सकता नहीं, कहाँ लाई करें, इट्स यू नो 113 मींस दिस इज आवर, जहाँ सी एफ वैल्यू 113 है, ये क्लास हमारी बेटा क्या है, हमारी ये क्लास मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। दिस इज आवर मीडियन क्लास। नाउ हमारे पास मीडियन क्लास है तो ये जो वैल्यू है 200 वो क्या हो जाएगी, दिस इज आवर एल, ये हमारा एल रिप्रेजेंट करेगा। ये 34 हमारा एफ है, ये 79 हमारा सी एफ है। इट्स अ वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सी एफ, क्योंकि जो सी एफ लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो प्रिसाइडिंग क्लास के लेते हैं। आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रखना है। हाइट एच क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ 300 टू 200, वी गेट 100, ठीक है बेटा। नाउ वी हैव, हमारे पास जो भी कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यूज अभी हमारे पास, जो भी वर्कआउट है, जो भी हमें वर्क करना है, वी हैव टू बी फाइंड आउट आवर मीडियन क्लास। नाउ देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कैलकुलेट आवर मीडियन। इट्स L plus n by 2 minus CF divided by F into height। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, our L is 200, the value of n by 2 is what, 94 minus CF, we have to take our CF, it's a 113, the value of frequency is 34 and the height is 100, ठीक है बेटा। हाइट क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ पे CF में देखिए जो गलती किया, CF रिसाइडिंग क्लास लेनी है, ये सबसे ब्लेंडर मिस्टेक होगा। आपको बताते बताते मैंने वैल्यू गलती की है। वी हैव टू टेक 79। नाउ 200 94 minus 79, what we get? We get it's a 15 upon 34 into 100, then 200 plus 1500 upon 34, 200 plus, अब हमें we have to divide, हमें 1500 को 34 से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, it's 17 and we get 750, then 17, ठीक है, 2 7 14, 2 5 10 0, 17 5 85 हो जाता है। Then we are going to find out it's a 17 4 times आएगा, ठीक बेटा, 468, 15 8 7, then 468 2 20, it's approx 44.1 आएगा। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ दिस मीडियन इज व्हाट, 244.1। अप्रॉक्स में हम डेसिमल पे 1 पॉइंट लग जाएं, ठीक है। आप घर बैठे हुए घर बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेसिमल पे 2 पॉइंट लग जाएगा। नाउ तो ये थी हमारी मीडियन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट वी गेट, वी गेट आवर मीडियन इज व्हाट, इट्स 244.1, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Now what we have, the following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Now look,
The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. 400 बेटा इस पर ध्यान दीजिए, मतलब यही हमारी समेशन ऑफ एफ है, सिग्मा एफ हमारा 400 ही आएगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल लेते हैं, इट्स अ लाइफ टाइम इन आवर्स, lifetime in hours, we have a lifetime in hours, it's given as a 1500 to 2000, 1500 to 2000, then 2000 to 2500, 500 की difference है, 2500 to 3000, then 3000 to 3500, then 3500 to 4000, then 4000 to 4500, then 4500 to 5000। ठीक है बेटा, इट्स कहाँ तक है, नाउ लुक आउट। देन नंबर ऑफ लैंप्स वी आर गिवन, द नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स की बात करते हैं, तो जो नंबर ऑफ लैंप्स है व्हाट वी हैव गिवन देयर, इट्स 14, 56 एंड 60। हियर वी हैव 14, 56, 60, then 14, 56, 60, 86, 74, 86, 74, 62 and 48, 62 and 48. Now we have lifetime in hours, a number of lamps. First of all, what we will do? We are going to find out our CF, value of CF. Just retain 14 here as 14. Then the sum of 14 and 6, it's a what? We get 70. The sum of 70 plus 60 we get 130, then 86 was 6, 8, 3, then we get 260, then 4, 220 we get 290, then 352, and the lastly we get 40 and 60, 40 we get 400। ठीक है, क्या क्या पहले हमने जो ऑब्जर्वेशन था उससे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर लिया। इट्स 14, 70, 130, 260, 290, 352 एंड 400। नाउ मींस जो हमारा समेशन ऑफ f है वो n है, n इज आवर समेशन ऑफ f, मींस वो हमारा 400 पहले ही कहा था, एंड द वैल्यू ऑफ n by 2 वी गेट 200। नाउ वेयर आवर यूनिट लाइज हियर, कौन सी क्लास में आ गई है, इट्स लाइज इन द, अब दिस इज आवर मीडियम क्लास, ये हमारी बेटा मीडियम क्लास हो गई, वी गेट आवर मीडियम क्लास, हमें मीडियम क्लास मिल गई। देन वहां से हमें क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ आवर L इज 3000 एंड आवर फ्रीक्वेंसी F इज गिवन एज 86। वी हैव आवर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास, वी हैव इट्स 130 एंड हाइट इज व्हाट, इट्स 500। ठीक है, जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, L plus n by 2 minus CF upon F into height। Then we are now going to be calculate our median L, it's a 3000 plus n, value of n by 2, it's a 200 minus CF 130 upon frequency, frequency we have 86 and into height of the class, it's our 500। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, 3000 plus 200 minus 130 upon 86 into 500। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3000 आएगा और ये आपका आएगा 200 minus 130, 70, 70 into 5, 350, then it's 20 also there, 86। ठीक है, now we have it's a 35000 अपॉन 86, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं डिवाइड करके, 35,086 को सीधा डिवाइड कर सकते हैं, तो मतलब इशू नहीं करेगा। 3500 डिवाइडेड बाय 86, 35000, then also goes 4 times, 4 374 2, 4 832, 344, we carry 6 there, then 60 divided by 0, then carry 1 of the 0, then 600, 5 plus 40, 8 at 64, 8 7 56, 6 times, then 6 6 36, 3,
6, 48, it's a 500. 516, we get 10, 6, 4, 9, 1, 8, 850, means 9 is can be 9 times. Means approx हो जाए, what we get here, आप उसे calculate कर लीजिएगा, 3000 plus it's a 406.9 approx. Then we get the value is what 3406.9. What we get the value? ठीक है, आपको डेसिमल के सेकंड पॉइंट से ले जाएगा, मैं अप्रॉक्स दिया हुआ है. देन वी गेट आवर दिस वैल्यू ऑफ दिस मीडियन. ठीक है, क्या मिली भाई मीडियन वैल्यू हमारी? इट्स 3406.9. ठीक है, चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इट्स वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव गिवन देयर. The following table gives the weekly consumption of electricity of 56 families. अब लोग we have given 56 families, मतलब जो हमारा सिग्मा एफ या एन आएगा वो हमारा बेटा क्या आने वाला है 56. जो लास्ट वैल्यू आएगी सी एफ की वो 56 आएगी. Weekly consumption in units we have given in our table. It's a weekly consumptions. We have given the weekly consumptions in units. Means कितने यूनिट्स बिजली खर्च हो रही है. It's given the interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. It's a 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 16, 12, 18. And then it's a frequencies is number of families we have. Number of families हमारे पास given है. It's given as the number of families is 16, 12, 18. 16, 12, 18, 6 and 4. Then what we have? We are going to find out the value of CF here. How can we get? It's a 16. Then 16 plus 12, 28, 28 plus 18, 46, 46 plus 6, 52, then plus 4. Means देखो अपने हमारा CF की वैल्यू क्या है बेटा 56 है. Now look what we see that we have seen that the following table gives the weekly consumption of electricity of 56 family. मैंने क्लास इंटरवल लिया, CF को कैलकुलेट कर लिया. Then what we have to do? Now we are going to find out. तो हमारा लास्ट वैल्यू है समेशन ऑफ f और n. ये 56 होगा. then we get the value of n by 2. 56 by 2 then we get 28. and look अभी देखिए 28 लाइव विथ आपको CF में ध्यान देना पड़ेगा. 28 अगर बराबर आ रहा है तो 46 में नहीं ना बेटा. 28 मींस 28 वाले इंटरवल में ही आएगा वो. ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा. जो 28 कैरी कर रहा है CF में आपकी फ्रीक्वेंसी जो वेरिएट की है वो लाई करेगी. तो 28 वाला पोर्शन ही बेटा हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी हैव आवर मीडियन क्लास. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 हो गई. लोअर लिमिट हमारा 10 हो गया. ठीक है, हाइट यहाँ पे 20 माइनस 10 10 हो जाएगा. CF हमारा 16 हो जाएगा. ठीक है, सारी वैल्यू मिल गई हमें. क्या है हमारे पास फॉर्मूला टू गेट मीडियन? इट्स L plus n by 2 minus CF multiplied with our height to the F. ठीक है, now we are going to put the value of L, lower limit is 10, the value of n by 2 is 28, then minus CF we have 16, and frequency is given by 12, and the height is our 10. And now we have finally 10 plus this 28 minus 16, we get 80 by 12. Now what we get? 10, then 80, 12 6 72, again we get 8.126 72. I hope so we get 6.66. ठीक है, तो now in approx what we get? The value is 28, sorry यहाँ पे 28 minus 16 we get already 12 there. Sorry, it's
तो सीधा ही 12 आ जाएगा, 6 to 8, so 12 into 10, then we get 10 plus 10, what we get 20, and our median is what, जो हमारे median की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो 20 आ जाएगी, ठीक है। तो लुक आज हम लोग ने क्लास में क्या देखा, हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर मीडियन क्लासेस। कल की क्लास में मीडियन पे डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे पास, जब हमारे पास डायरेक्टली क्लास इंटरव्यू ने दिया हो, कुछ बिलो या एबव वाले केसेस दे रखे हो, तो उन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स टू ऑल।